मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढाई जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। इन द लॉर्ड आई टेक रेफ्यूज, हाउ कैन यू से टू माई सोल, फ्ली लाइक अ बर्ड टू योर माउंटेन। फॉर बिहोल्ड the wicked bend the bow, they have fitted their arrow to the string, to shoot in the dark at the upright in heart. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? The Lord is in his holy temple, the Lord's throne is in his heaven. His eyes see, his eyelids test the children of man. The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. Let him rain coals on the wicked, fire and sulfur, and a scorching wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous, he loves righteous deeds. The upright shall behold his face. Let us pray. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us, O Lord, and this morning that we partake in this worship service. And Lord, let your glory be shine upon us and we may feel your presence during this worship, Lord. And I commit each and every one of us into your mighty hand. Lord, be with us and today's worship may acceptable unto you. And Lord, you will be glorified through our deeds and through our actions and through this worship. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. I welcome you all in this worship service. मैं आप सभी का स्वागत आज प्रभु यीशु के नाम में आज की इस वर्शिप सर्विस के अंदर करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसा निरंतर हम मीडिया के माध्यम से हम हमेशा ऑनलाइन अपनी लॉकडाउन के दौरान वर्शिप सर्विस को हम अंजाम देते आए हैं और हम ब्लेस हुए हैं। मैं आप सबको परमेश्वर की ब्लेसिंग से आशीषित करता हूं कि हम सब परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में उठाएं और इस वर्शिप सर्विस के दौरान हम सब आपस में जुड़े और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे। एंड दिस टाइम टू सिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड आवर फर्स्ट सॉन्ग which is found in English, hymn number 271, English book 271, Guide me, O thou great Jehovah. Guide me, O thou great Jehovah. And during this song, let us glorify God and let us indulge ourselves in this song. I am weak, but thou art
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith by reading Apostles' Creed, which is found in English book, Apostles' Creed number 738, and in Hindi, page number 1. 738 and page number 1 in Hindi. Let us confess our faith before God. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. My friend, it's time to read the responsive reading. और ये वक्त होगा कि हम उत्तरवादी पाठ में निकाल लेंगे. And today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, number 81, verses beginning from 1 to 16. भजन संहिता उसका 81वां भजन 1 से लेकर 16, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर अमिलेक जेम्स. And it will be read by Mr. अमिलेक जेम्स. बारी बारी से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल ले आप भजन संहिता 81. पहला वर्ष मैं पढ़ूंगा, दूसरा वर्ष आप पढ़ेंगे, और फिर आखिरी 16वां जो वर्ष है, हम लोग 16वां वर्ष है, वो हम साथ में पढ़ेंगे. परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो. भजन उठाओ, धफ और मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को ले आओ. नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि ये इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है. इसको उसने यूसुफ में चितौनी के रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला. वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी. मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया. तूने संकट में पड़ कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया. बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की. हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ. हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने. तेरे बीच में पराय ईश्वर ना हो, और ना तो किसी पराय देवता को दंडवत करना. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा. परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा. इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं. यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है. 16वां साथ में पढ़ेंगे. मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता हूँ. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Glory be to God. And now it's time to prepare our hearts, mind and soul for the prayer. हम अपने हृदयों को तैयार करें, अपने प्राण आत्मा देह को तैयार करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगे. We will put our supplications before God. We will pray for those who are sick. We will pray those who are going to celebrate their birthdays, their wedding anniversaries during this week. We will pray for our conferences. We will pray for our bishops. We will pray for our pastors, missionaries, and our church and our community. And we will uphold these all things in our personal prayer, and pastoral prayer will be led by Pastor Mankumar Rai, followed by Lord's Prayer. और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मन कुमार राय से कि वो पास्टर प्रेयर में हमारी अगुवाई करें, और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना में सब एक साथ मिलकर शामिल होंगे. आइए हम दुआ करेंगे. मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज के ये सुंदर समय, और खुदा बाप हमें दूर और पास से एकत्रित करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. विशेष करके खुदा बाप जितने भी ऑनलाइन में इसके मार्फत खुदा बाप आपको महिमा और प्रशंसा देते हैं और इसमें जुड़ते हैं, उन सबको बहुत ऐसे आशीष करें. और दुआ करते हैं खुदा बाप विशेष करके इस देश के प्रभु परमेश्वर, ये तमाम प्रभु परमेश्वर लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं. और खुदा बाप इस समय प्रभु प्रधानमंत्री और प्रभु परमेश्वर और तमाम मंत्रीगण को, राज्यपाल और तमाम लोगों को खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं. इस पैंडेमिक समय में उन्हें ज्ञान और बुद्धि विवेक दे, इस देश को सरल तरीका से चलाने में सहायता और मदद करें. और दुआ करते खुदा बाप इस देश का तमाम प्रभु शिक्षक, मंत्री और प्रभु परमेश्वर तमाम मंत्रीगणों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं. खुदा बाप बहुत ऐसे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा इस देश को चलाने में सहायता और मदद करें. डॉक्टर, नर्स और प्रभु परमेश्वर तमाम स्टाफ और लोग तमाम लोग को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं. इस समय, इस पैंडेमिक समय में, इस कोविड-19 के समय में खुदा बाप सबको बचा के सुरक्षित साथ रखे. और मैं दुआ करता हूँ इस प्रभु देश के प्रभु परमेश्वर तमाम जवान नौजवानों के लिए, और प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु पुलिस फोर्स, नेवी और प्रभु एयरफोर्स लगायत प्रभु तैनात बॉर्डर में सैनिक लोगों को खुदा बाप तेरे हाथ में सौंपते हैं. जिस तरह देश की सुरक्षा ये लोग करते हैं खुदा बाप, इसी तरह प्रभु परमेश्वर इनकी सुरक्षा आप करें. और खुदा बाप इन सारे बीमारियों से, इन महामारी से छुटकारा दे और सुरक्षित रखे, यही दुआ प्रार्थना करते हैं. और मैं दुआ करता हूँ विशेष करके खास तौर में डॉक्टर रेवरेंड जॉन आर विश्वास, और प्रभु परमेश्वर उनको पूरी तरह से उनके हेल्थ में सुधार आई है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. विगत दिन से, पिछले समय से अभी उन्हें बहुत सुधार है और पूरी तरह से प्रभु सुधार और छुटकारा चाहते हैं. चंगाई को बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे चंगाई हो जाए और जल्द से जल्द अपने काम में फिर अपने घर में वापस आ सके और सारे परिवार एक साथ मिलकर आवे. आपको धन्यवाद और तारीफ कर पाएं. और खुदा बाप उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए खुदा बाप बहुत ऐसे इस्तेमाल करें और खुदा बाप सबको आशीष करें खुदा बाप. और मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर शारोन सावंत और उनके सेवकाई के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए अपने बेटे को बहुत आयत से इस्तेमाल करें और उनके घर परिवार को बहुत आयत से इस्तेमाल करें. पिता परमेश्वर अलग अलग क्षेत्र में रहकर खुदा बाप आपके दास सेवा कर रहे हैं, उन सब के साथ रहे और खुदा बाप आपके नाम की महिमा हो. और मैं दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर हमारे पीसी मेंबर के लिए, तमाम प्रभु पीसी मेंबर को तेरे हाथ में सौंपते हैं. खुदा बाप सबको प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह दया दिखाए और पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको अगुवाई करें. भाईचारा, आपसी भाईचारा हो और प्रेम भाव के साथ एक दूसरों के साथ मिले जुले. और खुदा बाप इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु परमेश्वर सबको मदद और सहायता करे और ये प्रेरणा दे. और मैं दुआ करता खुदा बाप तमाम प्रभु परमेश्वर हमारे ले एक्टिविटी और प्रभु परमेश्वर तमाम और प्रभु परमेश्वर हमारे चेयरमैन है, चर्च चेयरपर्सन है, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ बिशप साहब और उनके
सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, उनके खानदान परिवार के लिए, और प्रभु मैडम सुविधा मंडल प्रभु उनको उनकी सेवकाई के लिए बहुत ऐसे आशीष करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर DRC ऑफिसर्स के लिए और MCI ऑफिसर्स, तमाम प्रभु परमेश्वर ऑफिसर को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, और सबको बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर के लिए और तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, और तमाम पास्टर्स लोगों के लिए, और प्रभु परमेश्वर DSS के लिए, और तमाम प्रभु परमेश्वर मिशनरी पास्टर के लिए, उनके घर परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर सुरक्षा मांगते हैं। और बहुत ऐसे इस्तेमाल करें प्रभु, अलग अलग क्षेत्र में होकर सेवा करते हैं, और प्रभु दिल्ली में रहकर तमाम प्रभु परमेश्वर अलग अलग मिशन के द्वारा सेवा कर रहे हैं, उन सब पासवान को ले प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, उनके घर और उनके खानदानों को प्रभु सुरक्षित दे, और देश के तमाम लोगों को प्रभु सुरक्षा दे, और प्रभु परमेश्वर तेरी अनुग्रह, तेरे कृपा दृष्टि बना रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना, और इस हफ्ते के अंदर जितने भी जिन जिन का जन्मदिन है उनको प्रभु बहुत ऐसे प्रभु परमेश्वर आशीष करें, और खुदा बाप लंबी आयु देकर सुस्वास्थ्य रखकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और खुदा बाप पिछले साल जिस तरह आप रहा, हर खतरा जोखिम में, बीमारियों में, हर तरह से आपने उनको बचाया, इसी तरह इस साल उनके लिए सुरक्षित एक प्रभु परमेश्वर तेरी अनुग्रह होने पाए। और दुआ करते इस हफ्ता के अंदर जितने का भी प्रभु परमेश्वर एनिवर्सरी है, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे, और उनके परिवार में खुशी और खुशहाल जीवन आए। जिस तरह विगत साल में प्रभु आपने उनके परिवार को खुशहाल रखा, इसी तरह इस साल भी खुशहाल होने में सहायता मदद करे। दंपति जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे, उनके प्रभु परमेश्वर आनंदित खुश के देखकर प्रभु लोग आप पर भरोसा और विश्वास करने पाए। और प्रभु हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं, एक दूसरों के लिए प्रभु एक उदाहरण का कारण होने में आप मदद और सहायता करें। इस हफ्ते भर में जिन जिन का भी प्रभु परमेश्वर प्रभु आना जाना प्रभु परमेश्वर दूर प्रभु परमेश्वर उनकी ट्रैवल है, उन सबको सहायता सुरक्षा दे। भजन संहिता 91 के अनुसार अपने स्वर्गदूत के पहरा देकर उनको सुरक्षित साथ आने जाने में मदद और सहायता करें। धन्यवाद खुदा बाप, आपने हमारा विनती और प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से प्रभु तमाम हमारे PC मेंबर को और प्रभु परमेश्वर तमाम प्रभु परमेश्वर हमारे कार्यकर्ता को और हमारे चर्च स्टाफ को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, सबको ताकत और तंदुरुस्ती दे। धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बच्चों के लिए, विशेष करके जितने बच्चे प्रभु ऑनलाइन के द्वारा इस बात पेपर चल रही है, परीक्षा चल रही है, उन सबको बुद्धि और ज्ञान विवेक दें और सबकी प्रभु जरूरत को पूरा करें। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूं प्रार्थना करने सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपराधी को माफ किया है उसी तरह हमारे अपराधों को माफ कर। हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरा है। आमीन। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर की हम सिताइश करेंगे। We will glorify God by singing some songs, praise and worship। हम लोग इसके अंदर शामिल होंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। And may I request Mrs. Jamila and family to lead us in praise and worship, और हम सब परमेश्वर को महिमा देंगे। जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार।
people. There may have been people who started this year with us but are not here, maybe due to the sickness, the COVID-19 has taken its toll. प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है वो प्रभु के सामने तुच्छ है। इसलिए अब हम जो गाना गाएंगे, प्रभु को जो दे सकते सिर्फ धन्यवाद और शुक्रिया। गिन गिन के हम स्तुति करेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। आइए हम गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करें। बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं, आई तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीतों के लिए जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए। अब ये वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग का जो कि लिया गया है पौलुस की प्रति गलेशियंस के नाम, गलातियों के नाम, चैप्टर 5 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 13, 1 से लेकर 13 वचन। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर रीडिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द epistle of Paul to Galatians chapter 5 verses beginning from 1 to 13, and the English reading will be read by Miss Catherine Ellis and Nepali reading will be read by Mr. Ashish and Hindi reading will be read by Miss Priya Soren। आइए हम सब परमेश्वर के वचन को सुने। Good morning. Today's scripture reading is taken from Galatians chapter 5 verses 1 to 13. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened by a yoke of slavery. Mark my words, I, Paul,
tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to you, every man who lets himself be circumcised, that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. किनकि हामी आत्माद्वारा विश्वासबाटै धार्मिकताको आशाको प्रतीक्षा गर्छौँ, किनभने क्रिस्ट येशूमा न त खतना न बेखतना केही फाइदाको छ, तर प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। तिमीहरू राम्रैसँग दौडिरहेको थियो र सत्यलाई मान्न छोड्नु भनेर कसले तिमीहरूलाई रोक्यो र? त्यो फक्कै फुसलाई तिमीहरूलाई बोलाउनेको तर्फबाट आएको त होइन। थोरै खमेरले जम्मै ढिकालाई खमीरी बनाउँछ। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अजीजों, ये वक्त होगा कि हम एक स्पेशल नंबर हम सुनेंगे मिस स्तुति जॉली के द्वारा, और हम परमेश्वर को इस गीत के दौरान महिमा देंगे। तुझको निहारूं, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हो हर पल तुझको
तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। ओ हर पल तुझको निहारूं, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। आइए हम पास्टर सारन सावन के द्वारा वचन सुनेंगे और इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब सर झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर, तेरे दास तेरे बेटे प्रभु तेरे चरणों में, आपके चरणों में रखते हैं। इन्होंने प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु आपसे सीखकर, आपसे दर्शन पाकर इन्होंने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। खुदा बाप हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे जहन में होने पाए, ताकि उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीष हो और सुनने वाले के कान में प्रभु परमेश्वर खोल दे और समझ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे, ना कि हम सुने बल्कि इसको सुनकर हमारे जीवन में अप्लाई करने वाले बन जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन कहता है ध्यान से सुनने वालों का प्रभु परमेश्वर आशीष मिलेगा। और खुदा बाप प्रभु सबको ध्यान से सुनने में आप सहायता मदद करें। आपके दास को आपके चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप ही सिखाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी बोलते हैं बेटे को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I would like to extend my thanks towards God Almighty that He has given me this privilege to share His words with His living people for today's worship. And secondly, I would like to thank our pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas, that he trusted on me, and he also gave me this wonderful privilege to share God's word. परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के वचन को मैं आपके साथ इस संडे के अंदर बांट सकूं। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास का, जिन्होंने ये बोला कि संडे के अंदर तुम्हें प्रीच करना है और तुम परमेश्वर के वचन को बांटोगे। परमेश्वर निरंतर मौके देता है, उनके लोगों को यूज करता है, ताकि जो परमेश्वर के वचन के बांटने के मौके हैं वो हम सबको मिलते रहें। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आइए हम आज के वचन शुरू करने से पहले परमेश्वर से दुआ करें। The word of my mouth and the meditation of our heart may acceptable unto you, O Lord, our rock and our redeemer. And also, I want to speak, but send your Holy Spirit to me, so your Holy Spirit will speak through me, O Lord. And Lord, give us the spirit of comprehension and open our hearts, mind and soul to grab your words and to bring 100-fold of fruit in your vineyard by the power of the Holy Spirit. Lord, thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. The today's scripture portion has been read before us already. Galatians chapter 5 and verse beginning from 1 to 13. जैसा कि आज का जो पवित्र कलाम का पाठ जो हमारे सामने पढ़ा गया, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 13 वचन। Calling of freedom is the birthright of every one of us. यानी जो एक स्वतंत्रता की बुलाहट है अजीजों, वो हम सबका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। Freedom is beyond the humanly efforts, but it is the will of God for the human beings. ये इसके लिए जो स्वतंत्रता है ये हमारे एफर्ट से कहीं परे है, मगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमको स्वतंत्र करे। Many people are in the prisons, are crying in their sufferings, in their death. They are waiting for the punishment, whatever they have committed.
जो कि उन्होंने जो अपने जेल के अंदर हैं, जो लोग हैं, जो कैदी हैं, वो रो रहे हैं, कर्रा रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं ताकि उनको स्वतंत्रता मिल जाए। ऐसे कई लोग हैं जो कारागाह के अंदर है ना बंधे हुए हैं और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात ये मुझे कभी कभी लगती है कि मरने से पहले क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर अजीजों घूमती रहती थी, बहुत सारी चीजें। और यहां पर जब हम देखते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। और जरूरी नहीं कि हर एक आजाद आदमी स्वतंत्र हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फ्री पीपल हु आर इन नॉट बॉन्डेज, जो कि वो आजाद हो या स्वतंत्र हो, ऐसा जरूरी नहीं है अजीजों। यहां पर जब हम पक्षियों को भी जब पिंजरे के अंदर रखते हैं, है ना, उनको भी हम जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, उनको हम रख देते हैं पिंजरे के अंदर, उनको भी स्वतंत्रता चाहिए। ऐसी हर एक चीज को जिसको परमेश्वर ने बनाया, सबको अपने जीवन के अंदर स्वतंत्रता की जरूरत है। आज कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है अजीजों, मगर आज का जो टॉपिक है काफी मूल्यवान, काफी वैल्यूएबल हमारे जीवन के अंदर है। शैतान जो है हर एक जने को इस्तेमाल करता है कि उसकी स्वतंत्रता जो परमेश्वर से मिली है उसको वो नाश करे, उसको वो छीन ले और वो स्वतंत्र नहीं रहे, बल्कि वो शैतान का गुलाम या शैतान का स्लेव हो जाए। क्योंकि जो शैतान है वो हर एक जने को, हर एक लोग को, हर एक व्यक्ति को वो नाश करना चाहता है, चाहे वो आत्मिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से क्यों ना हो। वो शैतान जो है वो हर एक मनुष्य को नाश करना चाहता है, उनको खत्म करना चाहता है, उनकी स्वतंत्रता छीन लेना चाहता है। वो जो उद्धार का जो उनको एक अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मिला है, शैतान वो भी छीन लेना चाहता है, जो कि परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। सेल्फिफिक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जो उद्धार को रखता है और उद्धार में स्वतंत्रता पाई जाती है। These abandoned people want to have freedom from their spiritual and the physical captivity, and they are in the pathetic condition of their sufferings and of their death. That's why I entitled my sermon as freedom in Christ alone. Freedom in Christ alone, यानी मसीह में, केवल मसीह में स्वतंत्रता है। आज का जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर आज के टॉपिक के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है अजीजों। सबसे पहले यदि हम इसकी बैकग्राउंड को देखें, गलेशियंस के बैकग्राउंड को देखें, तो यहां पर क्या जरूरत पड़ी कि पौलुस लिख रहा है अपने गलातियों को, अपने कलीसिया को, गलातियों के अंदर जो पाई जाती थी। पॉल ने, अगर हम चैप्टर 4, 13 और 14 पढ़ें, तो चर्च की स्थापना करी गलातिया के अंदर। फिर वो आगे बढ़ गया, यानी जो मिशनरीज का जो वर्क था, वो चर्च को प्लांट करते थे, कांग्रीगेशन को बनाते थे, उनको यीशु मसीह के बारे में सिखाते थे, उनको एक सही प्रकार से टीचिंग देते थे। और फिर वो जो मिशनरी, जो बड़े बड़े अपोस्टल्स थे, वो आगे बढ़ जाते थे और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के भरोसे पे, पवित्र आत्मा के अंदर और जवानों को इस्तेमाल करते हुए छोड़कर चाहते थे, ताकि वो एक नई कलीसिया की स्थापना करें और ऐसे परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का प्रचार बढ़ता रहे। फिर जब हम पढ़ते हैं, तब जब वो आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें कुछ यहूदियों के, जो ईसाई यहूदी थे, उनके खतने के बारे में पता चलता है, जो गलेशियंस चैप्टर 5 और 2 से 12 और चैप्टर 6, 12, 13 हमें मिलता है। और जिनको कई यहूदी कानूनों और अनुष्ठानों का पालन करना था, और वो कोशिश कर रहे थे कि जो न्यू कन्वर्टेड हैं, जो मसीह को मानने वाले हैं, वो ईसाई होने के साथ साथ, मसीह होने के साथ साथ वो यहूदी
जो अनुष्ठान है या उनके ट्रेडिशंस हैं उनको भी वो फॉलो करें, जैसे कि दिन, महीने, मौसम और वर्षों का पालन करना जो 5 और 10 के अंदर पाया जाता है। वह ये पत्र लिख रहा है गलातियन ईसाइयों को कि इन आवश्यक प्रथाओं जो चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 14 के अंदर पाया जाता है अपनाने के लिए राजी ना करें, उनको जबरदस्ती ना करें, उनको मसीह रहने दें, उनके फेथ को ना बिगाड़ें, उनके विश्वास को ना हिलाएं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में चले और यीशु मसीह को स्वतंत्र रूप से माने, ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के महिमा को करने पाए। और यहां पर एक चीज लिखती है कि उनकी जो धार्मिकता है, यानी यहूदियों की धार्मिकता जो है वो यहूदी कानून पालन करने से निर्भर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की कृपा यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से प्रकट हुई है। जो धार्मिकता है जो पाई जाती है चैप्टर 2 वर्सेस 21, चैप्टर 3 13 to 14, यहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। और ये इसका एक ओवरऑल बैकग्राउंड है अजीजों, क्योंकि जब न्यू कन्वर्ट्स जब कन्वर्ट हो रहे थे, यीशु मसीह पे ईमान ला रहे थे, उन्होंने चंगाइयों को देखा, उन्होंने अपने जो पुराना जो ईमान था उसको बदल दिया, अपने पुराने फेथ से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो यीशु मसीह के अंदर नए फेथ के अंदर आए और नई नई चीजों को वो सीख रहे थे। और जो अपोस्टल्स थे, जो प्रेरित थे, उनके द्वारा वो काफी ऐसे मिरेकल्स को देखते थे। बहुत सारी चीजें जो न्यू कन्वर्ट से उनके सामने हो रही थी, और जो यहूदियों में से जो ईसाई बने थे वो उनको फोर्स कर रहे होंगे कि तुम्हें हमारे इस यहूदी अनुष्ठानों का पालन भी करना है। मसीह हो ठीक है, मगर ये बात भी माननी है। मगर यहां पर जो पौलुस है वो ये कह रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को तुम्हें यीशु मसीह में देखना है, और यीशु मसीह के द्वारा ही तुम लोग स्वतंत्र हो, तुम लोग यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा पाए गए हो। जब हम देखते हैं यहां पर द फैक्ट्स अबाउट फ्रीडम इन क्राइस्ट अलोन इन रियल सेंस, जब हम यहां पर देखते हैं काफी तथ्य जो हैं यीशु मसीह में यानी परमेश्वर में या मसीह के अंदर स्वतंत्र होना, उसके क्या एक फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 1, यानी गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, और जहां पर पाया जाता है जीसस सेट अस फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बी फर्म इन हिम, यानी यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया और उसके अंदर हमें क्या है, उस स्वतंत्रता के अंदर हमें दृढ़ रहना है, जिसके मुताबिक हमें वापस से दासुता जो पाप की थी उसके अंदर हमें नहीं जाना। और यहां पर साफ साफ एक स्टेटमेंट है कि जीसस प्लेड द हीरोइक रोल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द हिस्ट्री, यानी यीशु मसीह ने एक नायक की भूमिका इतिहास में निभाई, ताकि जो लोग जो उस पर विश्वास करें वो क्या हो, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना एक हीरो माने कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिली है। यानी यहां पर जब हम एक चीज देखते हैं अजीजों, दासुता क्या थी, है दासुता क्या थी। जब हम देखें कि जो दासवता थी यानी कैप्टिविटी थी, वो थी पापों के अंदर हम स्वतंत्र नहीं रहे। शैतान ने हमें गुलाम बना लिया था, शैतान ने हमें मृत्यु दे दी थी, शैतान ने हमें टॉर्चर किया, शैतान ने हमें यातनाएं दी, हर प्रकार से शैतान ने ऐसे कामों को किया जिससे हम बंध गए थे और जिसके हमें छुटकारा चाहना था, हमें छुटकारा पाना था। और हमने प्रभु यीशु मसीह के फेस को देखा। दासुता सिर्फ ये नहीं होती अजीजों की कोई देश ने चढ़ाई करी और उनको बंदी बना लिया, नहीं, दासुता हर प्रकार की हो सकती है। हम एडिक्शन की दासुता भी ले सकते हैं, यानी नशाखोरी, पोर्नोग्राफी, ये भी दासुता है।
हर प्रकार की जो बुरी चीज जो हमें परमेश्वर पिता से दूर ले जाए और जिसके अधीन हम हैं, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, हम नहीं पा सकते या नहीं पाते अपने जीवन के अंदर, तो यीशु मसीह ही उसका सलूशन है। और उस समय भी यीशु मसीह ही वो सलूशन थे। जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने यीशु के द्वारा उनको स्वतंत्र किया, उनकी गुलामी से उनको स्वतंत्र कर दिया, उनके पापों से उनको छुटकारा देते हुए स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्रता का मतलब है छुटकारा अपने बॉन्डेजेस से, अपने दासता से, अपनी कैप्टिविटी से। ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और यहां पर साफ लिखा हुआ है कि मसीह स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो। For freedom Christ has set us free. Stand from therefore. और हमें इस स्वतंत्रता के अंदर बने रहना है। हमें वापस से गुलाम नहीं बनना, हमें वापस से अपने पापों के अंदर नहीं जाना। Because we all are the new creation in Christ Jesus. When we believe in Christ Jesus, we all are new creation. And freely, whatever we receive from God, and freely we have to give to the people, those who are in need, the need of Christ. जो परमेश्वर पिता की जो मसीह की आवश्यकताओं को रखते हैं। दूसरी जो फैक्ट बात है फ्रीडम की, वो है सृष्टि भी स्वतंत्र की जाएगी। यानी जो सृष्टि है, the world will also be set free. Romans chapter 8 and verse 21 says, यहां पर रोमियो की पत्री 8 और उसका 21वां वचन कहता है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासता से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। Ecosystem will be set free in Christ as well. We can see the disturbance around us in the ecosystem, in the ecology of the world, of the earth. यानी ये जो डिस्टर्बेंस है ये भी खत्म कर दिया जाएगा, है ना। यूनिवर्स, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये भी स्वतंत्र किए जाएंगे। दे आर क्राइंग, वो भी रो रहे हैं। और वो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्य जो हैं, हमारी डिजायर्स बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने क्या किया, सृष्टि को भी जो परमेश्वर ने परफेक्ट बनाई थी, जो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बनाई थी, उसको भी हमने बिगाड़ कर रख दिया अजीजों। यहां पर स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ मनुष्यों से भी नहीं, सृष्टि से भी है। सृष्टि भी स्वतंत्र की जाएगी ताकि वो जो परमेश्वर के संतान हैं उनकी महिमा में स्वतंत्र रहे। और वो कैसे कि परमेश्वर ने हमें भी एक स्टीवर्ड बनाया है कि हम भी उस इकोलॉजी के अंदर हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। अजीजों, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इट विल बी नेवर एंडेड अप। ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मनुष्य की इच्छाएं हैं, कैसे खत्म हो सकती है? 4G आ गया, 2G, 3G, 4G, अब 5G की क्या जरूरत है? अगर हम टेक्निकली अगर हम देखें तो 2G की स्पीड पहले अच्छी थी, फिर 3G आया तो 2G की स्पीड को कम कर दिया, 3G की बढ़ा दिया रेंज को। अब 4G आया तो 3G को कम कर दिया, 4G की रेंज को बढ़ा दिया। अब ऐसी 5G भी आएगा तो 4G की रेंज को कम करके 5G बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसे करते करते 10G, 11G, 12G, पता नहीं कितनी चीज हो जाएंगे। और जिसका नुकसान अगर हम देखें तो इकोलॉजी पे यानी इकोसिस्टम पे पड़ेगा। सोचिए अजीजों कि हमने सब कुछ, है ना, अपने डिजायर्स को हमने अपने कितना बढ़ा दिया है, हम देख नहीं पा रहे। हो सकता है हम उस नुकसान को देख नहीं पा रहे और उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जो चीज खाली हो जाएगी उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, और वो अगर कर भी देंगे तो वो परमानेंट नहीं होगा। मगर यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि सृष्टि भी स्वतंत्र की जाएगी। और सृष्टि स्वतंत्र की जाएगी मनुष्य की सेल्फिश डिजायर से, मनुष्य की जो गड़बड़ियां जो हैं उससे भी सृष्टि स्वतंत्र की जाएगी। और यहां पर मनुष्य स्वतंत्र होगा यीशु मसीह के द्वारा, और सृष्टि भी स्वतंत्र होगी परमेश्वर के द्वारा। तीसरी चीज जब हम यहां पर देखते हैं
मसीह का दास एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। तीसरा जो फैक्ट है वो ये है, जो मसीह के अंदर जो पाया जाता है, जो मसीह का दास है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है। अब हम एक तथ्य को लेंगे कि कैसे एक दास स्वतंत्र हो सकता है। अगर वो दास है तो वो स्वतंत्र नहीं है, और अगर वो स्वतंत्र है तो वो दास नहीं है। अगर जब हम देखें गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 10वें वचन में, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। प्रेज गॉड। यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। और मसीह का दास होने का मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह की गुलामी करना, मगर मसीह का दास होने का यह मतलब है कि परमेश्वर के प्रिविलेजेस को, परमेश्वर की योग्यताओं को, परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेकर चलना। यह मसीह के दास होने का मतलब है। उद्धार को अपने जीवन में पा लेना, यह मसीह के दास होने का मतलब है। मसीह यीशु हमें दास के रूप में कंसीडर नहीं करता, वो हमें कोड़े नहीं लगाता, वो हमें चाबुक से नहीं मारता, बल्कि वो हमको अपने गले से लगाता है। ये मसीह के दास होने का मतलब है। अजीजों, मैंने पहले भी अपने बाइबल स्टडी के अंदर बोला कि दासत्व का मतलब क्या है मसीह का दास होना या शैतान का दास होना, दोनों से मतलब क्या है। और जो मसीह में है वो स्वतंत्र है। और अच्छा है कि यहां पर एक सबमिसिव नेचर यहां पर आता है, और हम अपने आप को परमेश्वर को हमें सरेंडर करना है, हमें अपने आप को यीशु मसीह को दे देना है, जिससे कि हम स्वतंत्रता पालें, अपने पापों से छुटकारा पालें, अपने दर्द से छुटकारा पालें, हर प्रकार के मुसीबतों से हम छुटकारा पालें, और मसीह यीशु के अंदर हम आगे बढ़ते जाएं। ये यीशु मसीह के अधीन होने का मतलब है। अजीजों, एक ऐसी गवर्नमेंट के अधीन होना जो गवर्नमेंट अपने लोगों की सोचती है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की गवर्नमेंट है। मनुष्य अपने डिजायर्स के द्वारा, मनुष्य अपने अभिलाषाओं के द्वारा दूसरों को नुकसान कर सकते हैं, मगर परमेश्वर पिता कभी भी अपने लोगों का, अपने भरोसा रखने वालों के ऊपर कभी भी वो क्या कहते हैं, क्रोधी नहीं होता, उनका नुकसान नहीं करता, बल्कि उनको आशीषित करता है, उनको अपने गले से लगाता है। ये मसीह के दास होने का मतलब है। अजीजों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मनुष्य को प्रसन्न करने में रुचि रखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को प्रेस करते हैं, उनको सिर्फ ऊंचा उठाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम मसीह परमेश्वर के अधीन हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अभी भी दास हैं, मगर मसीह यीशु के नहीं, शैतानिक ट्रैप्स के, शैतानिक जालों के। और वो ट्रैप्स को हमें समझना है अजीजों, और अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा उन ट्रैप्स को हमें काटना है, उन जालों को हमें काटना है, और यीशु के नाम का परचम हमें लहरा देना है। The flag of Jesus Christ, the banner of Jesus Christ, we have to and we must have in our lives. Pleasing God should be our goal. And how to please God? By surrendering ourselves into the hands of God Almighty. हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना ही हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अजीजों, अब यहां पर फैक्ट्स हमने देखे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। यीशु के मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, सृष्टि भी स्वतंत्र की जाएगी, और मसीह का दास स्वतंत्र होता है। अब यहां पर किससे हमें छुटकारा मिला है, यानी किससे हमें स्वतंत्रता मिली है? What has given us freedom? क्या बात है ऐसी है जिससे हमें स्वतंत्रता मिली है? जो पहली चीज है, बंधुआई से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम एग्जाइल। यशाया चैप्टर 61 वर्स 1 यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको हम नाजरत मैनिफेस्टो भी कहते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
And that was the prophecy of Jesus Christ, कि प्रभु यीशु मसीह का यहां पर एक प्रोफेसी की जा रही है। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मनुष्य के लिए, है ना, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने अपने प्राणों के द्वारा हमें बंधुआई से और दासता से छुटकारा दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुनरुत्थित हुआ। He was resurrected and he lives again। वापस से वो जीवित हुआ और उसने ये प्रमाण कर दिया, उसने सील लगा दी कि छुटकारा मेरे अंदर है, तुमने अपनी बंधुआई से छुटकारा पा लिया है। बस बात इतनी सी है कि हमें उसके अंदर दृढ़ रहना है, विश्वास के अंदर हमें दृढ़ रहना है अजीजों। आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। वो कैसे दिया? जब अदने बाग के अंदर, द गार्डन ऑफ ईडन, when Adam and Eve committed sin, they disobeyed God, they became the slave of Satan। वो शैतान के स्लेव बन गए और क्या हुआ? मृत्यु इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारी चीजें संसार के अंदर आ गई जिसको परमेश्वर ने कभी चाहा ना था। किसके द्वारा आई? मनुष्य जात के द्वारा। वो बंधुआई में आ गए, पहले से ही एग्जाइल में आ गए। एक ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, एक्साइल वाज स्टार्टेड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन इटसेल्फ। यानी जो एक्साइल था, जो बंधुआई थी, वो अदने बाग से ही शुरू हो चुकी थी। और वो जो बंधुआई थी वो आत्मिक बंधुआई थी अजीजों। आत्मा से आदमी मर गया था, मनुष्य जात आत्मा के अंदर खत्म हो चुकी थी। और यहां पर जब यीशु मसीह आए, जब अपने आप को रिवील करते हैं कि वो समय अब आ चुका है, वो समय अब आ चुका है, और यीशु ने ये प्रोक्लेम कर दिया कि मैं आया हूं तुम्हें छुटकारा देने के लिए। That's why I said before that Jesus played the heroic role in the history। इतिहास के अंदर यीशु ने एक नायक की भूमिका निभाई, हमें स्वतंत्रता देने के लिए, हमें बंधुआई से छुटकारा देने के लिए। जबकि हम अपने पापों के अंदर कर्रा रहे थे, जबकि हम अपने पापों की क्षमा के लिए हम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, हम पापों के क्षमा के लिए हम बलियों को देते थे, यीशु ने सब खत्म कर दिया और एक बार में अपने प्राणों के द्वारा हम सबको छुटकारा दे दिया, ताकि हम फिजिकली और स्पिरिचुअली, यानी देह के रूप के साथ और आत्मा के साथ हम परमेश्वर को फॉलो करें। दैट वॉज द छुटकारा, दैट वॉज द रियल फ्रीडम। और किससे स्वतंत्रता मिली? जैसे मैंने बताया रोमियो 6:6, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। साफ साफ लिखा हुआ है रोमियो 6:6 के अंदर, फ्रॉम सिन ही हैज गिवन अस द फ्रीडम। हमें पापों से उससे छुटकारा दिया ताकि हम वापस से हम पाप के गुलाम ना रहें, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता को पहचान लिया जो यीशु मसीह में पाई जाती है। हमने उस झंडे को पहचान लिया जो उद्धार का एक टोप है, जो उद्धार को रखता है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। तीसरी चीज, रोमन्स चैप्टर 7 and verse 6 says, परंतु जिसके बंधन में हम थे उनके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते रहें। यानी हमें उसने फ्रीडम दिया व्यवस्था से भी। पहले जो व्यवस्था को जो लोग माना करते थे अजीजों, हम सब जानते हैं, हमने सबने बाइबल को पढ़ा है, वो कैसे उनको अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता था, किस तरीके से वो अपनी व्यवस्था पर चला करते थे, उसके द्वारा उनका उद्धार था। मगर यहां पर अब यीशु मसीह स्वयं व्यवस्था बनकर जब इस संसार में आया और सही तरीके से व्यवस्था को हमारे सामने रखा और प्रमाणित किया कि मैं ही व्यवस्था हूं, मेरे ऊपर ही तुम्हें चलना है, मुझको ही तुम्हें मानना है और मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार है, तो
हमने पुरानी रीतियों को छोड़ दिया और एक नए सिरे से हमने अपने जीवन को शुरू किया और उस व्यवस्था को जो प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग हमने उद्धार को पा लिया है। अजीजों, हमने उद्धार को पा लिया है और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। इसके लिए ना हमें बलियों को देना है, इसके लिए ना हमें सोना चांदी को देना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा हम व्यवस्था से छूट गए और व्यवस्था के अधीन जो यीशु मसीह में पाई जाती है हो गए। हमने लोगों से भी स्वतंत्रता पाई है अजीजों, यानी पहला कुरिन्थियों 7 उसका 22 और 23 के अंदर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 22 और 23 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्रता किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दास देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। साफ लिखा हुआ है, मनुष्य के दास ना बनो, मसीह यीशु के अंदर चलो। हम कभी कभी क्या करते हैं, सिक्योरिटी के पर्पस से अपने आप को मनुष्य के अधीन कर देते हैं। गलत है अजीजों। यहां पर वचन साफ साफ कहता है दूसरों को प्लीज करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए हमें बेनिफिट मिल जाए, मगर वो बेनिफिट परमानेंट नहीं है, वो बेनिफिट उस समय का ही है। और क्या गारंटी है कि वो जो मनुष्य जो हमारे ऐसे हम जिसको प्रसन्न कर रहे हैं वो खुश हो जाए और वो नाराज ना हो? है क्या गारंटी है? मनुष्य तो कान का कच्चा है अजीजों। मनुष्य एक भटकने वाला एक उसका मन है, वो आज यहां पर है तो कल दूसरी जगहों पर भी लग सकता है। बट आई एम स्ट्रेट फॉरवर्डली टेलिंग यू, मैं आपको ये साफ साफ कहता हूं कि यीशु मसीह के अधीन होना ही, यीशु मसीह के दास बनना ही हमारे लिए भला है और उत्तम है अजीजों। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ ही रहना है। फिर लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 16 वचन, कहां से हमें स्वतंत्रता मिली? शैतान से हमें स्वतंत्रता मिली, उसकी दासता से हमें स्वतंत्रता मिली। यहां पर लिखा हुआ है जब एक कुबड़ी महिला जब आराधनालय में आती है तो यीशु मसीह ने उसको स्वतंत्र किया और कहा अब से ये अब्राहम की संतान है, जो शैतान के बंधन में थी आज इसका छुटकारा हुआ है। प्रेज गॉड। आज शैतान के बंधन से हमारा छुटकारा हुआ है और शैतान के बंधन से हमारा छुटकारा उसी समय हो जाता है जब हमारा विश्वास ईमान जब यीशु मसीह पर मुकम्मल होता है। When we believe in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास को करते हैं तब हमारा छुटकारा वहीं से शुरू होता है। शैतान का हम पे कोई अधिकार नहीं है, हमारा हम पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता का है अजीजों। फिर कहां से हमें स्वतंत्रता मिली? सिद्ध व्यवस्था के द्वारा, है ना? सिद्ध व्यवस्था के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली। और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं अजीजों जो हम देखते हैं। शाप से हमें स्वतंत्रता मिली। यहां पर देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 3 और 13, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है गलेशियंस 3 and verse 13, और यहां पर साफ लिखा हुआ है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यानी यीशु मसीह ने सारे शापों को अपने ऊपर लेते हुए हमें स्वतंत्र कर दिया, सारे कलंक को लेते हुए हमें स्वतंत्र कर दिया, सारे पाप को अपने ऊपर लेते हुए हमें स्वतंत्र कर दिया। ये यीशु मसीह है अजीजों, ये हमारा परमेश्वर पिता है। अब यहां पर है स्वतंत्रता कैसे पाएं, किस तरीके से हम स्वतंत्रता पा सकते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा हुआ है जब हम उसकी आत्मा को ग्रहण करते हैं तो उसके आत्मा के द्वारा भी हम स्वतंत्रता पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने पर है। परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है, हमारी गुलामी से हमें आजादी देना चाहता है।
और अपनी पवित्र आत्मा को वो हमें देता है ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुटकारा पाकर उद्धार को पालें और मसीह जीवन को पालें। सिद्ध व्यवस्था के द्वारा याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 25 वचन में लिखा हुआ है। फिर कैसे छुटकारा पाएं? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा यूहन्ना 8:36 के अंदर लिखा हुआ है। फिर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। पहला पत्रस 1:18 और 19 के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पहला पत्रस 1 उसका 18 और 19 यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चालचलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. उसके निष्कलंक लहू के द्वारा हमारा छुटकारा संभव हुआ है अजीजों। और रोमियो 6:7 के अंदर स्वयं के लिए मर जाने के द्वारा, यहां पर रोमियो की पत्री 6 और 7 में क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ता हूं अजीजों। यहां पर लिखा हुआ है 6 और 7, यहां पर लिखा हुआ है, For would no longer be enslaved to sin. यहां पर लिखा हुआ, We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. यानी हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यानी जो हम पहले थे, हमने अपने आप को भी यीशु मसीह के साथ सलीब पर ठोक दिया। हमने अपने सेल्फिश डिजायरों के अंदर अपने आप को मार दिया। हमने अपने सिन के लिए हमने अपने आप को मार दिया, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी ही हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है अजीजों। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया अपने लहू के द्वारा, जब वो यीशु मसीह के रूप में इस संसार के अंदर आया। फिर कैसे पाए स्वतंत्रता? सत्यता को जानने के द्वारा। यूहन्ना 8 और 32, संपूर्ण हृदय से आज्ञा पालन के द्वारा। रोमियो 6, 17 और 18। हमें स्वतंत्रता पानी है तो अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखना है, यीशु मसीह पर रखना है कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। जब हम अपोस्टल्स क्रीड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पूरे यीशु मसीह की उन चीजों को एक कंसाइज फॉर्म के अंदर उसकी सेवकाई को दोहराते हैं। और हमारा जो ईमान जब हम बताते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारा जो ईमान है वो यीशु मसीह पर कैसा है और क्यों है। क्योंकि यीशु का मर जाना ही काफी नहीं था, यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना भी जरूरी था अजीजों। और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही जब कब्र का मुंह खुल गया, ऐसे ही हमारा जो पापमय जो जीवन था, जिसके द्वार शैतान ने बंद कर दिए थे, वो भी उसकी मृत्यु के द्वारा खुल गए और हमें पूर्ण आजादी मिली। हमें पूर्ण आजादी यीशु मसीह के अंदर ही मिली। हमें आज्ञा का पालन करना है अजीजों। जब आदम हवा जब आज्ञा को तोड़ा, अगर वो आज्ञा को पालन करते तो वो स्वतंत्र रहते, वो परमेश्वर के अधीन रहते, वो परमेश्वर के संरक्षण में रहते। मगर हमारी डिजायर्स को भी हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने चाल चलन को भी कंट्रोल करना है, हमें सब कुछ कंट्रोल करना है और परमेश्वर के चरणों पर रख देना है, ताकि जो हम नहीं कर सकते पूर्ण स्वतंत्रता उसके द्वारा परमेश्वर पिता हमको दे। एक कहानी के साथ मैं आज के सरमन को समाप्त करूंगा अजीजों। एक जंगल था, उस जंगल में एक चील थी और वो चील अपने पंख के द्वारा किसी झाड़ी में फंस गई। वो उड़ नहीं पा रही थी, फड़फड़ा रही थी और उड़ नहीं पा रही थी, जख्मी भी हो गई और काफी उसको शायद दर्द भी हो रहा होगा। यहां पर एक मनुष्य राहगीर जब जा रहा होता है, वो देखता है, वो उसको तरस आता है, वो कहता है कि मैं इसको छुड़ा लेता हूं। जब वो चील के पास जाता है उसको छुड़ाने के लिए, तो चील डर के मारे उसको काटती और वो
जो राहगीर है वो डर जाता, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं था, वो शिकारी नहीं था, वो आम आदमी था। वो ये कहता कि मैं कैसे करूं, कैसे इसको छुटकारा दूं। उसने भरसक प्रयास किया, 2-3 घंटे प्रयास किया, मगर चील ने उसको अपने पास आने नहीं दिया। वो अपने दर्द में फड़फड़ाती रही, पंख उसका फंसा रहा, कांटे उसके चुभे रहे होंगे और काफी फड़फड़ाती रही होगी। राहगीर थक हार के चला गया और अगले दिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि चील जो थी वो उस कांटों के अंदर ही अटक कर मर गई, उस कांटे के अंदर अटक कर मर गई। वो व्यक्ति उसको स्वतंत्र कराना चाहता था, मगर वो करा नहीं पाया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को अपने पास आने नहीं दिया। ये मसीह जीवन है अजीजों। हमें स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर को आमंत्रित अपने जीवन में करना है। अगर हमें स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर को अपने जीवन में हमें पहला स्थान देना है। अगर हमें स्वतंत्र होना है तो हमें अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पालन करना है। अगर हमें स्वतंत्र होना है तो हमें मसीह यीशु के बताए गए मार्गों पर चलना है। यह स्वतंत्रता का मतलब है अजीजों। शैतान तो चाहता है कि हम नाश हो जाएं। शैतान चाहता है, भय की आत्मा दे देता है ताकि हम परमेश्वर को आमंत्रित ना करें। परमेश्वर लालच की आत्मा, शैतान लालच की आत्मा हमारे अंदर दे देता है ताकि हम लालची आंखों से हम परमेश्वर को देखें। ऐसा नहीं है अजीजों। परमेश्वर तो छुटकारा देना चाहता है। क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं छुटकारा पाने के लिए? अगर करते हैं तो प्रेज गॉड, अगर नहीं करते तो हमें अभी भी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ बैठें और परमेश्वर के चरणों के ऊपर हम अपने सरों को सजदा करें, उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें। एज अ चर्च हमें छुटकारा चाहिए, एज अ सोच विचार हमें छुटकारा चाहिए, हमें हर प्रकार से छुटकारा चाहिए, और वो सारा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अंदर ही है और कहीं पे भी मुमकिन नहीं है अजीजों, कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हमें परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना है और उसमें ही दृढ़ बने रहना है। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, उसके अंदर ही हमें बने रहना है। तब रियल छुटकारा एक हमारे जीवन में आएगा और हम परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की महानताओं को, परमेश्वर के हम जीवन को, परमेश्वर के हम प्रेजेंस को, उपस्थिति को हम एंजॉय करेंगे, महसूस करेंगे अजीजों। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम जानते हैं कि हमारा जो छुटकारा है वो आपके अंदर ही है पिता। चाहे वो आत्मिक छुटकारा हो, चाहे वो शारीरिक छुटकारा हो, सब आपके अंदर ही पाया जाता है। हमें ऐसा बल दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी आत्मा दे, ताकि जो कुछ आज हम सीखते हैं हम अपने जीवन में पिता इस छुटकारे को लेकर चलें, और हम ही नहीं बल्कि दूसरों को भी ये छुटकारे के बारे में बताएं जो यीशु मसीह के अंदर है, और वो भी आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में लें पिता, और आपके नाम को महिमा दें, और हम भी शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। आज का वचन यीशु के नाम से व्यर्थ ना जाए, बल्कि पिता हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। Now it's time to glorify God by singing the song which is found in Hindi hymn, and the offertory will be taken during this song. और इस गीत के दौरान आप अपने हदियों को अपने ही स्थानों पर जहां पर हम वर्शिप के अंदर हैं जमा करेंगे, और जब चर्चेस खुलते हैं तो हम अपने हदियों को ऑफिस के अंदर जमा करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आइए इस गीत के दौरान हम परमेश्वर की महिमा करें। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।
तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। बेमकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मांगू, सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, पाक कमाल ज़ात की खुशी, सना सना उसकी है। सब देता हूँ, सब देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। अब ये वक्त होगा ऑफरिंग प्रेयर के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। अब ऑफरिंग प्रेयर में भी हमारी अगुवाई पास्टर अमन कुमार राय करेंगे और मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और ऑफरिंग्स के लिए भी वो प्रार्थना करें। आइए हम सब ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे। अपने सर नतमस्तक होकर परमेश्वर के सम्मुख आए। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, हम आपको धन्यवाद और तारीफ करते हैं इस सुंदर समय जितने भी आपके बेटे बेटी ने अपना कमाए हुए में से कुछ हिस्सा प्रभु तेरे चरणों में लेके आया है। इस भेंट के लिए खुदा बाप प्रभु परमेश्वर हृदय भेंटी लेके आए हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभु का परमेश्वर है। आपके सम्मुख हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? और जो भी है खुदा बाप हृदय भेंटी खुदा बाप लेके आए, इसे कबूल कर। और प्रभु परमेश्वर छोटे से एक पैसा के रूप में उनके खर्चे और प्रभु परमेश्वर खर्चे हुए भंडार में स्वर्गीय भंडार से बहुत आज से आशीष करे। और खुदा बाप उनको आने वाले दिन में प्रभु और भी ज्यादा से ज्यादा आशीषित कर, ताकि तेरे भंडार में बहुत आज से प्रभु तेरे भेंट और ला सके। और प्रभु धन्यवाद भेंट और प्रभु परमेश्वर दशमांश इन तमाम चीजों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। जिन जिन्होंने जो जो चीज रखा है, थैंक्स गिविंग, इन सब को प्रभु तू कबूल करे। और खुदा बाप इनके
खर्चे हुए भंडार में 60 गुना और 70 गुना 1000 गुना दे, जिस तरह मलाकी 3:10 के अनुसार प्रभु परमेश्वर तो आपने कहा अनुसार प्रभु आशीष करे। आपने कहा ये सब कुछ करके मुझे चेक करके देख लो मैं कैसा भला हूँ। और खुदा बाप सचमुच आप भला है और वो भलाई प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं, आगे भी देखेंगे। और प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सारे विनती और प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस भेंट से प्रभु आपके राज्य के महान सुसंदेश के काम के और आपकी महिमा के लिए ये सब कुछ होने पाए। धन्यवाद के साथ ये सारे विनती प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु नासरत के नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Let us hear the church announcements. आइए हम कलीसिया इस्तिहार सुने। It is regarding the church starting, restarting and reopening of the church कि जब तक further instructions हमें बिशप ऑफिस से नहीं मिल जाते तब तक हम चर्च को क्लोज रखेंगे और ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से हम अपने चर्च की सर्विस को चलाएंगे और जूम के द्वारा रिकॉर्डिंग के द्वारा ये वर्शिप होगी। और हम जो ऑफरिंग अपनी इकट्ठी कर रहे हैं अपने चर्च की और जो हम पार्टेक करते हैं जो सर्विसेज के अंदर, उस ऑफरिंग्स को भी जब चर्च ऑफिसेस खुले हुए हैं कभी भी जब भी आप आए अपने ऑफरिंग्स को आप जमा कराएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और हम कंटिन्यूसली हम प्रार्थना करें हमारे डीएस साहब के लिए, हमारे पास्टर इन चर्च रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर भी दिया। अब जल्दी से वो रिकवर हो और परमेश्वर करे कि वो वापस से अपनी सेवकाई में आए और परमेश्वर के नाम को मुबारक कहें। एक जिंदा गवाही भी हम उनके द्वारा जब सुनेंगे जब वो चर्च में आएंगे। और संडे स्कूल अपने रेगुलर होता है संडे के लिए और जो कि 4 बजे शुरू होता है डॉक्टर बित्रा की अगुवाई के अंदर जो जूम पे होता है। और हम अपने बच्चों को भी संडे स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए एनकरेज करें, मोटिवेट करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो मसीह तालीम के अंदर, मसीह संगति के अंदर और मसीह शिक्षा के अंदर वो बढ़ते जाएं और परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए। और बाइबल स्टडीज हमारी सैटरडेज की रेगुलर है और अब जो बाइबल स्टडी जो सैटरडे की रेगुलर है उसको भी हम कंटिन्यूएशन के अंदर एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे जिससे कि हमारी बाइबल स्टडीज भी बनी रहे और हम परमेश्वर के वचन में से सीखते रहें। यूथ मीटिंग भी अपनी जगह पे रेगुलर है और जो जूम के द्वारा होती है और टाइम टू टाइम हमारे चर्च की जो यूथ है आपस में मिलके बैठकर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्कशंस होते हैं और परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा उठाते हैं। और ये एक करेक्शन है रिगार्डिंग कंफर्मेशन क्लासेस के लिए। और जैसा कि जो इंस्ट्रक्शंस जो पाए गए हैं हमारे जो पास्टर इंचार्ज है रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा, कंफर्मेशन क्लासेस इट्स अ सीरियस कंसर्न। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि जहां पर हमारे बच्चों को हम कंफर्म करते हैं, उनका कंफर्मेशन करते हैं और इसको बहुत ही हम लाइट नहीं ले सकते। और ये जूम के ऊपर जो ये मीटिंग हो रही है, जो कंफर्मेशन क्लासेस हो रही है, ये नहीं होगी क्योंकि जब चर्चेस खुलेंगे, क्योंकि अभी कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन बिशप से हमें नहीं मिले हैं कि कंफर्मेशन कब होगा बच्चों का, कैसे होगा। हो सकता है ये साल, हो सकता है अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनवरी और मे बी फरवरी ये कंफर्मेशन क्लासेस हो सकता है बिशप साहब बोले। मगर जब तक चर्चेस प्रॉपर तरीके से रीओपन नहीं हो जाते तब तक ये क्लासेस नहीं होंगी और जब चर्च ओपन हो जाएंगे तो ये क्लासेस वापस से शुरू होगी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। और बेसमेंट पे ही जैसे कि रेगुलर ये क्लासेस चली हुई आ रही हैं वैसे ही इसको हम आयोजित करेंगे, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मगर जूम के ऊपर ये क्लासेस वैलिड नहीं होंगी और इन क्लासेस को माना नहीं जाएगा। और फर्दर जो भी नोटिसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम आपको टाइम टू टाइम हम आपको देते रहेंगे। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और
परमेश्वर हम सबके साथ रहे, बना रहे और परमेश्वर को इस सर्विस के दौरान भी महिमा मिले। और अब ये वक्त होगा कि क्लोजिंग प्रेयर का, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सर्विस के दौरान आप हमारे दरमियान रहे। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, आपके नाम को हम मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं। और पिता आज की वर्शिप आपको ग्रहण योग्य हुई, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता हम सब जने जो मीडिया के माध्यम से इस सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम आपके आगोश में देते हैं। सबके साथ रहें, सबको प्रोटेक्ट करके रखें पिता, और सबको पिता आप सुरक्षित रखें। और पिता संपूर्ण आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, छुटकारा पाया जाता है। आइए हम बेनेडिक्शन के साथ रुखसत हो। Now may the grace of the Lord Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, and the love of God, who is our Creator, and the sweet communion of the Holy Spirit, who is our guide, rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, और हम धन्यवाद देते हैं निरंतर मिस्टर प्रकाश टिग्गा की सर्विसेज के लिए, जबकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि YouTube के माध्यम से वो वर्शिप को हम तक पहुंचाते हैं, जिसके अंदर हम प्रिविलेज्ड होते हैं और ब्लेस होते हैं उसके अंदर पार्टेक करने के द्वारा। परमेश्वर उनको भी आशीष दे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हर बीमारियों से बच के रहें, और परमेश्वर के चरणों के ऊपर, परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर हम सब बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।